My name is Madhukar. I'm assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. Okay, the next is lecture 2. Here we will discuss introduction to internet services and tools, introduction to client server computing. Okay, number 1 is introduction to internet services. Okay, what are internet services? Basically, the thing is internet services allows us to access huge amount of information such as text, graphics, sound, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट. बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेट सर्विसेज जो हैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं कि एक्चुअली होता क्या है इंटरनेट पे हमें क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, मतलब किस किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज हम ले पा रहे हैं उससे. तो इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन सी इंटरनेट सर्विसेज डिवाइडेड इन 4 पार्ट. नंबर 1 इज कम्युनिकेशन सर्विसेज, सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, and then third one is World Wide Web. As we discussed earlier, World Wide Web, obviously it is a kind of services which is available, okay, with the help of which we can access information, because the information is shared globally with the help of World Wide Web. Okay, number 1, so first we will talk about communication services. Okay, basically communication service, as the term denote communication. Here the communication, because we want to exchange information, we want to communicate, we want to share information from one person to another person. Okay, तो these services basically क्या करती हैं, हमें क्या ऑफर करती हैं, exchange of information with individuals or groups. Obviously you can easily send information, you can easily access information, means you are communication, you are providing, it is providing communication, you are communicating with the other person, either it is individually or in groups. Okay, अब here communication can be done with the help of email. Okay, because as we are, सभी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, email यूज कर रहे हैं. everybody is using email, most of the people are using email because email is available everywhere. और the most famous email जो है वो है हमारा Gmail. Definitely email is electronic mail. Here we basically sending electronic message over the internet. Okay, we are sending electronic message, right? So this is basically most popular. Is initially we also we also use Yahoo, definitely. Okay, now the next thing that provide communication is Telnet. What Telnet does? Basically Telnet help us to remote login of another computer. If you are sitting at one place, if you are using at वन कंप्यूटर, यानी आप एक कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो और आप दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो या लॉगिन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट. टेलनेट ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी ये टूल्स है एक तरीके का, आप यू कैन से दैट. नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ ग्रुप. ऑब्वियसली इफ यू वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद इन ग्रुप्स, ओके, इफ यू वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन मल्टीपल पीपल्स, तो वी विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक. नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग. ऑब्वियसली वी आर यूजिंग चैट बॉक्स. Everywhere we are using chat box, either it is on Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, everywhere. So with the help of this particular techniques, we are also able to communicate to the persons, to the individuals or groups, because we can instantly क्या कर सकते हैं, हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं over the internet. Okay, with the help of this particular tools. So this particular services provides the exchange of information with individuals or groups. Next one is information retrieval services. अब here the retrieval word denotes, basically this word denotes retrieve, to access, to gain access. Okay, so this particular service is offering easy access of information present on the internet. because हमें क्या है, हम लोग को अगर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है और यूज़र अगर है या क्लाइंट है, यूज़र है, अगर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो डेफिनेटली क्या हो कि ऐसा कुछ तो मीडियम हो जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, अपने इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाएँ. तो उसके लिए क्या है, दिस पर्टिकुलर सर्विसेज में क्या हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसमें क्या होता है, यू कैन ईजिली एक्सेस द फाइल्स और यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र द फाइल्स, ओके, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. ओके, सेकेंड वन इज आर्ची. बेसिकली क्या है, स्टोर हाउस, everything is available here. Okay, so with the help of this you can access or you can retrieve information. Okay, third service is web services. Obviously
we are using web. Web services help us, or web services allow exchange of information between applications on the web. Okay, if one application want to access information of another application, okay, then with the help of web services we can exchange information between application on the web. Using web services, application can easily interact with each other. ऐसा होता है कि अगर आप यूज़र एक कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और उसको दूसरे एप्लीकेशन की सर्विसेज को यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करे, और रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अवेलेबल, or this is a kind of internet services. That's why we are able to basically access information, we are able to exchange information, okay, on the internet. Next है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब. We have already discussed World Wide Web because it offers a way to access documents spread over several servers over the internet. बिकॉज क्या होता है कि सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि डिफरेंट सर्वर्स अवेलेबल है जो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं टू द यूज़र्स, और उन यूज़र्स को कौन हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कराने में, वो है वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब हमारे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और ग्लोबल सर्विस है बेसिकली, वी कैन कॉल इट, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं जो जितना भी हमारा कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे फैला हुआ है, जो मल्टीपल सर्वर्स के पास है. ओके, इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स. ओके, अब हाइपरलिंक्स के हेल्प से यूजर्स क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट आपस में इंटरलिंक्ड हो रखे होते हैं. अब अगर आप हाइपरलिंक का यूज़ करते हो तो वो यूजर्स क्या कर सकते हैं, आप बिटवीन डॉक्यूमेंट्स में आप नेविगेट कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट से आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे इजीली स्विच कर सकते हो. ओके, तो बेसिकली दीज आर ऑल द 4 सर्विसेज विच एन इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग. ओके, सो with the help of these services we are able to communicate, we are able to retrieve, we are able to access document, we are able to access files, our application is are able to communicate each other, or our applications are able to exchange information on the web. Okay, or basically the document which are available on the different server, we are able to access those documents with the help of internet services. Okay, the next one is introduction to internet tools. Okay, as I have discussed earlier, we have different tools which we are using to access information, to communicate, to send information, okay, which help us to communicate, okay, which help us to transfer information. So we have different tools, just as I discussed, email. Obviously it is electronic message over the internet, everybody is sending email, people are able to attach file, people are able to write certain kind of words. With the help of these electronic message we are able to communicate, we are able to send information. Next one is telnet. Obviously with the help of telnet we are able to log on to remote computer that is attached to the internet. इफ़ अगर आप एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो और आपने दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टीम व्यूअर की बात करें तो वहाँ से उससे क्या कर सकते हो, आप दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, लॉग ऑन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट रिले चैट, IRC. IRC क्या अलाउ करता है पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम, नॉट पास्ट कम्युनिकेशन, आप रियल टाइम पे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है. कौन? इंटरनेट रिले चैट, दिस वन. नेक्स्ट आता है हमारे पास गोफर. बेसिकली गोफर क्या हेल्प करता है, रिमोट साइट्स पे हमें हेल्प करता है टू सर्च, रिट्रीव और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ऑन रिमोट साइट्स, नॉट योर साइट्स. अगर आप रिमोटली कहीं बैठे हो और आपको उस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन भी नहीं पता, स्टिल यू आर एबल टू सर्च, रिट्रीव एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ गोफर्स. नेक्स्ट इज FTP, that is file transfer protocol. Obviously it helps user or it enable user to transfer files, okay, from source to destination, or it also help us to access files from server to the other resources or other destinations. Okay, next is chat software. As I earlier discussed, instant messaging. Obviously we are using Yahoo Messenger, MSN Messengers because offers real time chat between individuals and group of people. Right now we are using WhatsApp Messenger. This is all about chat software because in real time we are able to communicate with the individuals, or we are able to communicate with a group of peoples. Okay, so these are basically some sort of tools which help us to access information, to communicate, to send information, okay, to send files, or to communicate in real time environment.
नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. ओके, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. If I am a user or you are a user and if you want to access some sort of information, यानी कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, आपको कोई फाइल चाहिए या आपको कोई डेटा चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपके पास तो है नहीं. इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पर, वहाँ पर उन मल्टीपल सर्वर्स पे पास स्टोर होगा. अगर आपको किसी भी सर्वर्स के थ्रू अगर आपको डेटा चाहिए, सर्वर से डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे. यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक टेक्निक्स है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. यहाँ पर क्या है, एक तरफ क्लाइंट होता है, दूसरी तरफ सर्वर होता है. क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी डेटा के लिए, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमारी सर्वर के पास. ओके, सर्वर क्या करता है, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एट द सेम टाइम. ओके, अब क्या होता है, सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और जो वो रिस्पॉन्स कहाँ जाता है, वापस क्लाइंट के पास जाता है. किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. जैसे आपके एक डायग्राम में देख सकते हो, ये हम लोग क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स जैसे दिख रहे हैं आपको, ये हमारे क्लाइंट्स हैं मल्टीपल्स. ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसने रिक्वेस्ट किया, वो सर्वर के पास गया. सर्वर क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल सेंड द रिस्पॉन्स थ्रू द इंटरनेट. एंड क्लाइंट और सर्वर दोनों किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड है. एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है दोनों में. ओके, किसके फॉर्म में, रिक्वेस्ट के फॉर्म में और रिस्पॉन्स के फॉर्म में. इससे क्या हो रहा है कि क्लाइंट को रिसोर्स भी मिल रहा है और सर्वर एबल है उस रिसोर्स को क्लाइंट तक पहुंचाने में. ओके, थ्रू द इंटरनेट. दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग देयर विल बी clients and there will be servers. Okay, client will request for certain resources, for certain information to the server, and server will respond after processing that particular request to the client. Okay, and then the client will be able to access that particular resources, that particular information or that particular data. This is called client server computing. With the help of this we are able to exchange information. नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्या हो रहा है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसके हेल्प से क्या हो रहा है, हम लोग अपने रिक्वेस्ट को जनरेट कर पा रहे हैं और हम उसके बाद उस रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स भी मिल पा रहा है हमें, जिसके इस मॉडल के थ्रू, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल के थ्रू. ओके, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. पहला करेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली यही होगा कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की तरह वर्क कर रहा है. क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करने में एबल है यानी सक्षम है टू द सर्वर, एंड सर्वर रिस्पॉन्ड करने, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स सेंड करने में एबल है. ओके, नेक्स्ट आता है क्लाइंट एंड सर्वर शुड फॉलो कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सो दैट दे कुड इजीली इंटरेक्ट विद ईच अदर. यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है. प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमारे सेट ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे फॉलो किए जाते हैं, और आप उन्हीं कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही इंटरेक्ट कर पाते हो एक दूसरे से. अगर कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होंगी तो शायद हम लोग कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश ना कर पाए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है और सर्वर क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अ सर्वर कैन ओनली अकोमोडेट लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट एट अ टाइम. So it use a system based to priority to respond to the request. मतलब क्या है, सर्वर एक जरूरी नहीं है सर्वर एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए, सर्वर मल्टीपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक बार में हैंडल कर सकता है. ओके, तो दिस इज बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. नेक्स्ट है हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर ऐसा कोई अटैक अगर लगता है, बेसिकली अगर हम लोग एरर बोल सकते हैं या फिर वायरस बोल सकते हैं, अटैक्स बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है वो सर्वर जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उसको क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर देता है. ठीक है, तो अब क्या कर सकता है कि वो उस पर्टिकुलर क्लाइंट, अगर वो कोई भी ऐसा अटैक्स आता है तो सर्वर क्या कर सकता है, उसको ऑथेंटिकेट कर पाता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में, क्योंकि अगर सर्वर ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में ये क्लाइंट की ट्रू रिक्वेस्ट है या नहीं है, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाएगी किसी और को पर्सन को. तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि वो इट इज़ ही एबिलिटी, बेसिकली सर्वर की एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू द ऑथेंटिकेट क्लाइंट रिक्वेस्ट. ओके, अगर एग्जाम्पल देखें हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का, तो वो है हमारा जैसे कि हमारा वेब सर्वर.
ठीक है, बिकॉज क्योंकि जब भी आप क्लाइंट क्या करता है, वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है, तो क्या करता है क्लाइंट, क्या करता है उसको वेब सर्वर क्या करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसको उन वेब पेजेस को क्लाइंट को शो करना स्टार्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट बेसिक एडवांटेजेस। तब तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अभी हम एडवांटेज देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऑल द रिक्वायर्ड डेटा इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल प्लेस। मतलब ये है एट द सर्वर, अगर क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटिंग का एक मॉडल का ये फायदा है कि क्लाइंट अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उससे मल्टीपल सर्वर को कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड, किसी ना किसी सर्वर के पास, और क्लाइंट इजीली क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है और वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे डेटा का प्रोटेक्शन भी हो जाता है और ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन भी होता है, क्योंकि अगर कहीं डेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे यानी एक सर्वर पे स्टोर है तो उससे क्या होगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने डेटा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड है हमारे पास पॉइंट, द सर्वर नीड नॉट टू बी फिजिकली क्लोज टू द क्लाइंट। ज़रूरी नहीं है कि सर्वर क्लाइंट्स के पास ही हो। ग्लोबली आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन से क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। ये भी क्या है कि इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारा, इट इज ईजी टू रिप्लेस, अपग्रेड एंड रिलोकेट नोड्स इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। आप क्या कर सकते हो, सर्वर को इजीली रिलोकेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है, बिकॉज सारे नोड्स यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है एंड रिक्वेस्ट डाटा ओनली फ्रॉम द सर्वर। ओके, आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए आप इजीली रिलोकेट रिप्लेस भी कर सकते हो। ये भी एक इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल द नोड्स क्लाइंट एंड सर्वर मे नॉट बी बिल्ड ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म यट दे कैन इजीली फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ डेटा। मतलब क्या है, सर्वर और क्लाइंट सिमिलर नोड पे बिल्ड नहीं है, सिमिलर थिंग्स के साथ बिल्ड नहीं किए गए, सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड नहीं किए गए, फिर भी क्या हो रहा है, हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं और सर्वर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर पा रहा है और हम उस डेटा को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। इसीलिए ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है। क्लाइंट कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करे, सर्वर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करे, स्टिल वी आर एबल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, we are able to communicate, we are able to access data. okay, नेक्स्ट आता है थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के या किसी मॉडल के एडवांटेजेस भी है तो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो डिसएडवांटेज देखते हैं, अगर पहला है सारे क्लाइंट अगर साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करते हैं ओके फ्रॉम द सर्वर किसी डेटा के लिए, तो हो सकता है वो सर्वर ओवरलोड हो जाए और इससे क्या होगा, कंजेशन होगा नेटवर्क पे और हमारा नेटवर्क क्या होगा, हमारा थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और हमारी सर्विसेज सारी रुक जाएंगी। ये हो जाता है क्योंकि अगर मल्टीपल का एक साथ रिक्वेस्ट करो, सर्वर हैंडल ही ना कर पाए, एक थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है, अगर सर्वर किसी भी तरीके से फेल हो गया, बाई चांस किसी रीज़न की वजह से अगर फेल हुआ तो कोई भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगी। ओके, थर्ड वन इज जो कॉस्ट है मेंटेनिंग की और सेटिंग की क्लाइंट सर्वर मॉडल, वो थोड़ी सी हाई है, क्योंकि आपको क्या करना है, क्लाइंट के लिए अलग मॉड्यूल प्रोवाइड कराना है और सर्वर के लिए अलग मॉड्यूल प्रोवाइड कराना है। सर्वर एक अपने आप में एक कंप्लीट मॉड्यूल है और क्लाइंट हमारा क्या है, कंप्लीट मॉड्यूल है। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर तक तो वो अपने हिसाब से वर्क करेगा एंड सर्वर अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। तो दिस इज हाउ द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग वर्क्स। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, तो थोड़ा सा अलग करते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को। ओके, द नेक्स्ट इज टॉपिक इज जावा। एज वी वर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जावा का यूज़ करने वाले हैं। जावा के थ्रू हम क्या करेंगे, पहले तो वी आर यूजिंग HTML, उसके थ्रू वी विल क्रिएट वेब पेजेस। स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे, जावा स्क्रिप्टिंग, हमें कुछ कंडीशंस लगानी है, उसके बाद हमें कुछ कंडीशन मेट करानी, सेट करनी है। उसके बाद हमें बेसिकली हम यहाँ पर ज़्यादातर जावा का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, बैक एंड पे अगर हमें काम करना है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है अगर हमें, तो हमें क्या किस पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, और वो कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारी जावा। ओके, जावा के बारे में बात करते हैं। जावा एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक बेसिकली हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म भी है, और जावा एक हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी, लैंग्वेज एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप एक शब्द में बोलो तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, जावा इनिशियली सबसे पहले डेवलप की गई थी सन माइक्रो सिस्टम ने, कंपनी थी जिसने क्या किया, वो क्या आप सब्सिडियरी है ओरेकल की। सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को डेवलप किया 1995 में, और इसके फादर कौन कहलाए जाते हैं, दैट इज जेम्स गॉसलिंग।
नोन एज द फादर ऑफ जावा, क्योंकि जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने आपस में मिलकर क्या कराया था, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बनाने में, डेवलप करने में हेल्प किया था। ओके, होता क्या है, जावा का इनिशियली नाम जावा तो था नहीं, क्योंकि पहले से इसके एक दो नाम रखे गए थे, जिसके बाद जावा बाद में एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गया, रजिस्टर्ड नाम हो गया, किस नाम से, जावा के नाम से। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम क्या बन गया, जावा, आफ्टर सर्टेन एफर्ट्स। ओके, पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्यों है। अगर मैं बात करूं, जावा मेरी जो लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज भी है, तो ये प्लेटफॉर्म क्यों कहलाया जाता है, इट्स ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म एज वेल, बिकॉज होता क्या है कि यहाँ पर क्या है, एनी हार्डवेयर, अगर हम कोई किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ प्रोग्राम रन होता है, उसे हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और जावा क्या करता है, अपना एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, JRE, और API प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। जावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म बिकॉज जावा प्रोवाइड अ रन टाइम इन्वायरमेंट टू रन सर्टेन जावा प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन क्यों कहलाया जाता है। देयर आर मेनी डिवाइसेज वेयर जावा इज currently यूज्ड। जावा इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, दैट इज ऑन मोबाइल, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एटसेट्रा। ओके, यहाँ पर क्या है, इसलिए जावा बेसिकली क्योंकि सिक्योर भी है, इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर जो भी कंटेंट है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज बीइंग बिल्ड इन जावा लैंग्वेजेस। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट है, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की, तो क्या हो सकता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो कि अपने आप खुद अपने लिए अकेले वर्क करते हैं, देयर इज नो नीड टू वर्क विद अनदर एप्लीकेशन। तो इसको जैसे कि एंटीवायरस है, एंटीवायरस स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेब एप्लीकेशन, जो हमारे वेब ब्राउजर्स पे रन करते हैं, यानी हमारे सर्वर साइड एप्लीकेशन रन हो सर्वर साइड, या फिर क्रिएट डायनेमिक कंटेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो कि हमारे बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं। ओके, इसमें क्या होता है, आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्रिएट कराने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि हमारी मोबाइल डिवाइसेस के लिए क्रिएट किया जाता है। दीज आर द जावा एप्लीकेशन, जैसे कि स्टैंड अलोन हो गया, एंटीवायरस, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड द फोर्थ वन इज मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए हमारी क्या होती हैं, डेवलप की गई हैं। वर्जन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जावा के एडिशंस आए हैं कुछ। अभी लेटेस्ट जो वर्जन अभी जावा का वो यूज़ हो रहा है, जावा 17, यानी JDK 17। बेसिकली आगे प्रपोज है कि 22 मार्च तक, क्या 2022 तक हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल जावा का 18 वर्जन आ जाए। ओके, तो अभी फिलहाल जावा का लेटेस्ट वर्जन जो यूज़ हो रहा है विच इज़ जावा 17। ओके, यहाँ पर क्या है, कुछ एडिशंस आए थे जावा के, जैसे कि जावा SE, जावा स्टैंडर्ड एडिशंस। ओके, बेसिकली इट इज़ जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, हमारे इंक्लूड करता है कुछ APIs को, जैसे कि IO, नेट, java.util, SQL, java.math एट्सेट्रा। अभी जो ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह लैंग्वेज में, वो है हमारा SE। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर SE से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इनपुट आउटपुट देखना होता है। हमारे पास नेटवर्क की बात करते हैं हम लोग, यूटिलिटी की बात करें, या फिर हम SQL डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें, तो हम लोग SE एडिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जावा एंटरप्राइज एडिशन। मैंने बताया अभी जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि एंटरप्राइज एडिशन बेसिकली हम लोग बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक कंप्लीट मॉड्यूल जनरेट करते हैं फॉर सर्टेन बिजनेस पर्पस। ओके, तो ये भी क्या है, हमारा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, जो मेनली यूज़ होता है टू डेवलप वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो कि बैंकिंग में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, क्योंकि बैंकिंग के मॉड्यूल्स में ऐसा ही है। फिर है हमारा जावा ME माइक्रो एडिशन, जो कि डेडिकेटेड है मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए स्मॉल फेज में। फिर है हमारे पास जावा FX, जो कि यूज़ किया जाता है टू डेवलप द इंटरनेट एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज अ लाइट वेट यूजर इंटरफेस API, जो कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन होते हैं। ओके, this is basically these are all about the addition which we are talking about, because as we all know कि we have different edition, we have different versions. जावा ने अपने initially जावा 1 से लेकर वर्जन जनरेट किए थे। now जावा is going to release the latest version जावा 18। उसके बाद हमारे एडिशंस आए, जावा SE, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, माइक्रो एडिशन, और उसके बाद फिर हमारे पास आया जावा FX। these are all about the additions of Java. Okay, that's it from this lecture. Thank you.